Okay. So what we discussed in the last class, we discussed about the consumer behavior models, right? We discussed about the traditional model. In today's class, we are going to complete the contemporary model as well. But before that, who is going to tell me about the models which we discussed in the last class? Who is going to elaborate it? Raise your hand. The first one is the economical model. Who is going to tell me? Online class and offline class. Raise your hand. Raise your hand. Economic model is really based on price effect. It means consumer wants to give minimum amount to get maximum satisfaction from the product. It has three levels. First is price effect, second is substitute effect, and third is income effect. In price effect, if the price of the product is less, then the purchase is more. It means the purchasing power of the buyer is increased. In substitute effect, if the original product's price is more and its substitute price is less, then people will go towards the substitute product. And in income effect, if the income of the consumer is increased, then his purchasing power is increased, and thus the product's purchase is more. Exactly. What is the economical model? It's totally dependent on the price factor, that if the price of the product is low, then the customer satisfaction will be increased. It will increase more. Why? The reason behind it is like consumers are the price sensitive. Consumer क्या है? Price sensitive है. जितना सस्ता सामान मिलेगा, better quality मिलेगा, उतना ही ज़्यादा उनका satisfaction level क्या होगा? उनका high होगा. ठीक है? यहाँ तीन इफेक्ट कौन कौन से इफेक्ट थे? इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट? द सेकंड मॉडल, learning model. Who is going to elaborate it? Muskan. Yes, Muskan. Learning model, in this model, Muskan. Learning model, this model depending on needs. Every consumer have their own desires, their own needs. So their needs, their behavior depends on their needs and desires. So how he or she, how they get their products in various types of market. Basically, good. Purchasing power, या फिर बोल सकते purchasing pattern, sorry. Purchasing pattern of the people, it's totally depend upon the need of the product. यानी आपको product का कितना need है. ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट का आपको एक्सट्रीम नीड है, देन मे बी इट इज पॉसिबल दैट यू विल परचेज क्विकली. सो बेसिकली यहाँ पर जो पर्सन, जो कंज्यूमर होगा, ही और शी विल मूव अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव लर्निंग प्रोसेस. कॉग्निटिव लर्निंग यानी लर्न करेगा चीजों को नीड के हिसाब से, एंड देन आफ्टर दैट ही और शी इज गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट. यानी डिसीजन जो होगा प्रोडक्ट को परचेज करने का, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर नीड. आपकी नीड पे डिपेंड करेगा आपके परचेज. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, third model. Yes, Adiba. This model states that name. Psychoanalytical model. Yes. This model states that consumer behavior depends on conscious and subconscious mind, like ID, ego, and superego. ID means desire, want. Ego, reality, and superego, moral ethics. Environment or Psychoanalytical model is something which is totally dependent upon your conscious and subconscious mind, like according to your thinking. And what we understand, there are 3 points in this. id या id कहते हैं, ठीक है? id, id, ego and super ego. Like what kind of behavior, some behavior which is moved by the society, that is the super ego. यानी कि society जो हमें कहता है करने के लिए, but लेकिन वो unrealistic है, we cannot able to achieve that, but still sometime because of the society we are forced to purchase those product which is not, मतलब जो बोल सकते हैं realistic unrealistic atmosphere में आपको वो धकेलता है. super ego. Ego is something that is balanced between id and your super ego, right? And it is something which is your natural behavior, like what people likes. For example, which I already elaborated, like agar exam hai, तो what we want to do party, and that is the normal and natural behavior. because बहुत लोगों को पढ़ने का मन नहीं करता है, right?
So here the basically psychoanalytical model is something which is totally depend upon the thinking and your conscious and subconscious mind. What you filled on in your mind, क्या तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, what kind of thinking you have. ठीक है, तो ये psychoanalytical था. उसके अलावा एक और फैक्टर था दैट इज सोशल. ठीक है, सोशियोलॉजिकल आपका मॉडल जो है उसमें थोड़ा सा लिख लीजिए सोशियोलॉजिकल मॉडल क्या है. सोशियोलॉजिकल मॉडल फोर्थ वन, ये आपका वो है ट्रेडिशनली चल रहा है, अभी हम लोग कंटेम्पररी पे नहीं गए हैं. ठीक है, सोशियोलॉजिकल मॉडल, सोशल से बना है सोशियोलॉजिकल मॉडल. सोशियोलॉजिकल मॉडल इज समथिंग इन विच द लाइफस्टाइल एंड द प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद द सोसाइटी. समाज के हिसाब से जो हम प्रोडक्ट को चूज करते हैं, राइट. सो हेयर द सोशियोलॉजिकल मॉडल का क्या एम है, दैट वी हैव टू बेसिकली मतलब लाइफस्टाइल पे कंज्यूमर जो है उनका क्या फोकस अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी. कहते हैं ना कि कुछ वेस्टर्न एफ्लुएंट जो सोसाइटी दे ऑलवेज परचेज those kind of product dresses which is suitable according to their society. ठीक है, तो यहाँ पर सोशियोलॉजिकल मॉडल इज समथिंग जो लोग हैं वो सोसाइटी के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं. ठीक है, इसमें लिखिए सोशियोलॉजिकल मॉडल एम्स, सोशियोलॉजिकल मॉडल एम्स attention primarily on the lifestyle and associated product and क्या मैम थोड़ा स्लो और फिर से. हाँ, attention primarily, चलो लिखिए sociological model aims attention primarily on the lifestyle and associated product demand and associated product demand of the consumer in the society. Sociological model aims attention primarily on the lifestyle and associated product demand of the consumer in the society. यानी समाज में किस तरीके के प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा है. अच्छा बताओ, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग लाइक, चलिए अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, आगे लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल an individual buyer according to this model, an individual buyer is a member of an association. Individual buyer is a member of an association called society. ठीक है, बेसिकली जो सोशियोलॉजिकल मॉडल यही बताता है कि जो हर एक कंज्यूमर दे आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी and their behavior and the purchasing pattern is according to the society. सोसाइटी के हिसाब से उनका परचेजिंग पैटर्न है, राइट. वैसे ही वो प्रोडक्ट खरीदेंगे जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, और साथ साथ में जो वो बेसिकली अफेक्टेड है किसके द्वारा, अदर पीपल, जैसे कि आपके फैमिली से, फ्रेंड्स से, समझ रहे हो. तो यहाँ पर जो फैक्टर्स जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को जो इफेक्ट कर रहा है वो कौन सा फैक्टर, बेसिकली सोसाइटी. ठीक है, और सोसाइटी में, और इसके अलावा और भी चीजें जैसे आपके फैमिली, फ्रेंड्स, ये सारे जो इफेक्ट कर रहे हैं आपके बिहेवियर को, ये सारा आपका सोशियोलॉजिकल फैक्टर में आ जाएगा. तो यहाँ पर दो तरीके का ग्रुप है जो इफेक्ट करता है, एक होता है प्राइमरी ग्रुप और एक है सेकेंडरी ग्रुप. प्राइमरी ग्रुप में जो आपके फ्रेंड्स हो गए, ठीक है, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, दे आर द पार्ट ऑफ द प्राइमरी ग्रुप. ठीक है, सेकेंडरी ग्रुप में आपका जो आएगा दैट विल बी लाइक सोसाइटी में जो और भी है, आपका कल्चर हो गया, आपका बिलीफ हो गया, आपका ट्रेडिशन हो गया. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द सेकेंडरी ग्रुप. सो बेसिकली यहाँ पर आपको कौन इफेक्ट कर रहा है, सोसाइटी. एंड सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं, जो आपके आसपास लोग हैं, आपके नेबर में हैं, जो आपकी फैमिली में लोग हैं, दे आर बेसिकली इफेक्टिंग द बेसिकली परचेजिंग पैटर्न या परचेजिंग बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर. अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ. मॉडल सोशियोलॉजिकल मॉडल क्लियर हो गया, सोशियोलॉजिकल मॉडल समझ आ गया, सोशियोलॉजिकल मॉडल क्लियर हुआ.
बेसिकली इसमें क्या चीज है, आपका सोसाइटी आपके बिहेवियर को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, राइट? क्या कौन इफेक्ट करेगा? आपकी सोसाइटी। सोसाइटी के में रहने वाले लोग जो होंगे वो, और साथ साथ में आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, ठीक है, लाइफस्टाइल वगैरह जो है वो इफेक्ट किसके द्वारा हो रहा है, सोसाइटी के द्वारा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? नेक्स्ट इज कंटेम्पररी मॉडल। कंटेम्पररी मॉडल में मैंने 3 मॉडल कराया था, हार्वर्ड स्टेट मॉडल, निकोशिया और ईकेबी, एंजल कॉलेज, बैकवेल, ईकेबी, ब्लैकवेल। कंटेम्पररी। नेक्स्ट निकोशिया मॉडल क्या है बेसिकली? सो निकोशिया मॉडल इज समथिंग विच इज अ कम्युनिकेशन, मतलब कि क्या कंपनी आपसे कम्युनिकेट करता है और किस तरीके से आप स्टेज बाय स्टेज जाकर के प्रोडक्ट को खरीदते हो, जो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस याद है ना, दैट इज रिलेटेड विद दैट। निकोशिया मॉडल में भी यही होता है कि जो आपका बायलेटरल कम्युनिकेशन, मतलब कंपनी आपको क्या बता रहा है प्रोडक्ट के बारे में, आप क्या फीडबैक ले रहे हो, तो एक ये क्या चल रहा है बेसिकली, सर्कल, ठीक है। अब ये हाँ कनेक्टेड है। अब यही सर्कल जो है ये आपकी बिहेवियर को डिफाइन करेगा कि पहले आप ब्रांड को इवैल्यूएट करोगे, प्रोडक्ट को देखोगे, फिर फाइनली प्रोडक्ट को खरीदोगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट लिखिए, निकोशिया मॉडल क्या लिखिए, व्हाट इज निकोशिया मॉडल लिखिए। This model displays the relations between the company. This model displays the relations between the company and the customer and originates. This model displays the relations between the company and the customers and originates among them for bilateral communication. For bilateral communication is something which is two-way. Two-way communication is known as bilateral. Unilateral is something where one-way communication is there. Okay? Communication. ठीक है। Here आगे लिखिए, कंपनीज लिख लिया, अब आगे लिखिए, कंपनीज इंटरैक्ट विद कस्टमर्स थ्रू प्रमोशनल एक्सरसाइजेस, थ्रू प्रमोशनल एक्सरसाइजेस। व्हाट इज प्रमोशनल एक्सरसाइजेस? जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह करना। कंपनी क्या करती है, एक तरीके से रिलेशंस बिल्ड करती है, कैसे? बाय शोइंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट, not even relationship, but they are giving the awareness and information about the product, that this product exists in the market. ठीक है, लिखिए, companies interact with customers through promotional exercises, although customer communicate by purchasing product. Customer communicate by purchasing product. In short, Nicosia model is something where the behavior of the consumer is dependent upon that what information is provided by the companies, what kind of promotional basically क्या promotion वो use कर रहा है for showing the product. Communication का मतलब क्या होता है? Communication का मतलब क्या होता है? Message. Basically message provide company क्या कर रहा है, किसके बारे में? आपकी प्रोडक्ट के बारे में मैसेज क्या प्रोवाइड कर रहा है, कौन कंपनी क्या मैसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको? कस्टमर को। तो यहाँ पर निकोशिया मॉडल जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप परचेज कैसे करोगे प्रोडक्ट को, बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस थ्रू द मैसेज। ठीक है, यानी मैसेज के थ्रू आप कैसे इन्फ्लुएंस होंगे और कैसे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। देखो, कंपनी तो शुरुआत में ही कम्युनिकेशन करता है, जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में आया वैसे उससे पहले कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर है वो कम्युनिकेट कब करता है कंपनी से? जब उसको प्रोडक्ट परचेज करना होता है। मान लीजिए कि प्रोडक्ट खरीदने के टाइम पे इसने फीडबैक लिया, अगर कोई ऐसा जानकारी चाहिए जो अवेलेबल नहीं है तो जानकारी के लिए दे कैन कॉन्टैक्ट। ठीक है, आफ्टर परचेजिंग द प्रोडक्ट इफ दे आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंस अबाउट दैट प्रोडक्ट दे कैन आस्क
ठीक है, तो इन शॉर्ट द मार्केट, जो ये कंपनी है, ये मैसेज कहाँ से कहाँ पहुंचाता है, बेसिकली एडवर्टीजमेंट करता है, प्रमोशन करता है और इंफॉर्मेशन देता है किसको, कंज्यूमर को, कस्टमर को। यहाँ पर सबसे पहला एक सब सिस्टम फर्स्ट है। सब सिस्टम फर्स्ट में आपका आएगा कंपनी का एट्रीब्यूट, यानी कंपनी किस चीज के बारे में और कैसे शो कर रहा है, एडवर्टाइज कैसे कर रहा है। तो यहाँ एट्रीब्यूट में क्या होगा, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कौन सा कंपनी यूज कर रहा है, किस तरीके से एडवर्टीजमेंट कर रहा है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन यूटिलाइज करना, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में वो क्या बता रहा है कंज्यूमर को। ठीक है, एप्पल का देखा एडवर्टीजमेंट, वो किस तरीके से अपना कैमरे को शो करता है, लाइक यू कैन मेक फिल्म थ्रू इट, राइट। सो पहला सब सिस्टम क्या होगा, एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी किस तरीके से प्रमोशन करता है, तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर यूजिंग। पहले स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, प्लानिंग बनाना, मार्केटिंग प्लानिंग करना, मार्केट इंफॉर्मेशन ग्रैब करना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, क्वालिटी के बारे में बताना। तो पहला तो ये हो गया, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपनी जो है दे आर सेंडिंग द मैसेज टू द कंज्यूमर, राइट। सो बिफोर दैट व्हाट दे विल डू द मार्केट रिसर्च करेंगे, मार्केटिंग प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, उसकी क्वालिटी, उसके बाद वही चीज किसको मैसेज से पहुंचाएंगे, कंज्यूमर को। ठीक है, सेकेंड सब सिस्टम इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, यानी फीचर्स हैं। पहला तो कंपनी का फीचर, सेकंड कंज्यूमर का फीचर। अब कंज्यूमर की पर्सनालिटी क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर क्या है, इनके प्रेफरेंसेस क्या है, प्रायोरिटी क्या है, सोशल ग्रुप कौन सा है। ठीक है ना, तो अलग अलग कंज्यूमर्स का वैरी करेगा सोशल ग्रुप, लाइक सम आर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, सम आर इन्फेंट, सम आर लाइक ओल्ड एज। ठीक है, their priority is different, their preference are different, some are the colleagues, office colleague है, उनका society अलग है, right? So in short, the every consumer have different kind of preferences, priority, nature, behavior, personality and lifestyle. So we have to first think about the attributes of consumer. कंपनी का attributes, कंपनी के features, फिर consumer के features. तीसरा सबसेट that is, फिर अब ये जो है, अगर इसको प्रोडक्ट को परचेज करना है, किसको, कंज्यूमर को, तो व्हाट दे कैन गोइंग टू टेक द हेल्प, दे आर फर्स्ट डूइंग द इवैल्यूएशन। प्रोडक्ट पहले इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, फिर इवैल्यूएशन करेंगे, फिर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे एंड क्या, फीडबैक लेंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ जो डायग्राम है ना, दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा सा अलग है। आपके पास है नोटबुक तो दे दो मुझे कोई, मुझे भी लगा कि कुछ अलग तो बता रही हूँ। So basically first here, what kind of message we are going to send, that is according to the consumer's attribute and the marketing attributes. Then after that the consumer is going to do the search and evaluation for purchasing the product. Once the search and evaluation is done, then they are going to do the decision or action is something where they are going to take or purchase the product. After purchasing the product, finally they will give the feedback to the company and again it is going to affect the message of the company. पकड़ना जरा, समझाने। फर्स्ट एवरीवन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो। निकोशिया मॉडल में क्या है, निकोशिया मॉडल इज समथिंग that is totally dependent upon the message, that what message is sent by the company. कंपनी के द्वारा क्या मैसेज जा रहा है, मैसेज किस द्वारा कैसे बिल्ड करेंगे, वो कंपनी का आपका एट्रीब्यूट पे डिपेंड होगा, और क्या मैसेज करना है वो कंज्यूमर के एट्रीब्यूट यानी कंज्यूमर के फीचर पे। मार्केटिंग जो कंपनी का एट्रीब्यूट होगा, यानी मार्केट प्लान कैसे बनाएंगे, मार्केट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, प्रमोशन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट कैसा बनाएंगे, क्वालिटी कैसा होगा प्रोडक्ट का। और कंज्यूमर का एट्रीब्यूट इज समथिंग जहां पर हम प्रेफरेंस क्या होगा इनका, प्रायोरिटी क्या होगा, प्रेफरेंस में यानी ब्रांड किसको प्रेफर करते हैं, ठीक है, इनका एज ग्रुप, इनका लाइफस्टाइल, एवरीथिंग कम्स अंडर द कंज्यूमर एट्रीब्यूट। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, क्लियर हो गई बात। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट कि यहाँ पर मैसेज के लिए दोनों का एट्रीब्यूट होगा। उसके बाद कंज्यूमर को जैसे ही मैसेज मिलेगा कंपनी के बारे में, वैसे ही ये क्या करेगा, इवैल्यूएशन करेगा प्रोडक्ट को कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है या नहीं। एक बार इवैल्यूएशन कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट अच्छा लगा तो क्या होगा, डिसीजन लेगा किस चीज को लेकर के, परचेज करने को, यानी यहाँ पर जाकर के वो एक्शन लेगा, इंप्लीमेंट करेगा कि भाई परचेज प्रोडक्ट को करेंगे कि नहीं।
एक बार प्रोडक्ट को परचेज किया, हो सकता है कि प्रोडक्ट हम क्वालिटी के हिसाब से, मैसेज के हिसाब से, या जो भी हमें कम्युनिकेट किया कंपनी ने उसके इन्फ्लुएंस होकर खरीद लिए, हो सकता है। लेकिन प्रोडक्ट कैसा है दैट वी कैन डिफाइन आफ्टर यूजिंग, राइट। देन वी आर गोइंग टू गिव द फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट, लाइक प्रोडक्ट का फीडबैक। अब फीडबैक दोनों तरीके से हो सकता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। Then this feedback is again going toward the company. कंपनी के पास ये फिर जाएगा. Then again the company is going to make the marketing strategy. Again they are going to basically check the customers attribute, and this cycle is going to move again and again. So basically there is the, क्या बताने का मतलब है ये मॉडल का, कि रिलेशनशिप है किसके बीच में, मार्केटर्स और कंज्यूमर के बीच में, और यही रिलेशनशिप जो है वो ओवरऑल परचेजिंग डिसीजन को इफेक्ट करेगा और कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करेगा। क्लियर हो गया ये मॉडल? अब समझ आया ये मॉडल एवरीवन? सबको समझ आ गया ये मॉडल? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास? यस मैम। ठीक है, यानी कि ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। कंज्यूमर अपना पहले, अब ऐसा नहीं होगा कि रिसोर्सेज कम है और वो बहुत ज्यादा प्रमोशन करेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो कंज्यूमर भी अपना स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से बनाएगा, कंज्यूमर के एट्रीब्यूट्स यानी बिहेवियर को देखकर बनाएगा, कौन से हमारी कंज्यूमर पोटेंशियल है। उसके बाद फाइनली कंज्यूमर देखेगा मैसेज, फिर इवैल्यूएट करेगा, फिर डिसीजन लेगा, फिर फीडबैक देगा, फिर ये फीडबैक वापस से कंपनी में जाएगा, एंड दिस साइकिल इज गोइंग ऑन रेगुलरली, राइट। तो इसको कहते हैं निकोशिया मॉडल। नेक्स्ट मॉडल EKB मॉडल, 3 करवाया था कंटेम्पररी मॉडल। चलिए नेक्स्ट वन, एंजल कॉलेट एंड ब्लैकवेल मॉडल। लिखिए एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल, कॉलेट या कॉलाट, कॉलेट, एंजल कॉलेट, कॉलेट की स्पेलिंग KOLLAT, कॉलेट। एंजल ए वाला नहीं है, ई है, ENGEL, एंजल, इंजन वाला एंजल। ब्लैकवेल मॉडल, एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल। एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल, आई गेस इतना हमें समझ में आ गया है ना। So, इसको EKB मॉडल भी कहते हैं शॉर्ट में, EKB मॉडल। सो एंजल कॉलेट ब्लैकवेल जो मॉडल है, दैट इज बेसिकली कंस्ट्रक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम फेस्ड टू अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में जो प्रॉब्लम फेस करती है कंपनी, उसके लिए मॉडल को लाया गया, एंजल कॉलेट ब्लैकवेल मॉडल। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट्स है जो बेसिकली कलेक्ट किया गया है, किसके बारे में, कंज्यूमर के बारे में। ठीक है, एंड फाइनली किस तरीके से कंज्यूमर प्रोडक्ट को परचेज करेगा उसको बताया गया है। लाइक एक कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्टिव वे कह सकते हैं कि एक मॉडल, ऐसा मॉडल है ये जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू हम समझेंगे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को कैसे परचेज करते हैं, राइट। सो यहाँ पर वही सेम चीज है, सबसे पहले प्रॉब्लम आया कंज्यूमर के लाइफ में, फिर उसको प्रोडक्ट का समझ में आया कि कुछ खरीदना चाहिए, इंफॉर्मेशन सर्च, जो आपका नॉर्मल कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस है ना, दैट इज, हाँ दैट इज बेसिकली EKB। शायद मैंने उसको निकोशिया में बता रही थी, नहीं, दैट इज इन EKB। इसको लिखो, लिखो। ओके, सो लिखिए EKB मॉडल लिखिए। इट वाज बेसिकली, कब आया था ये? 1968 था कि 78 था? चलिए लिखिए इसको। This model is constructed to solve the problems. This model is constructed to solve the problem faced in understanding the consumer behavior. Faced in understanding the consumer behavior. This model is constructed. इस मॉडल को क्यों बनाया गया है? This model is constructed to solve the problem. Solve, SOLVE. Solve the problem. This model is constructed to solve the problem faced in understanding the consumer's behavior. Consumer behavior. ठीक है, आगे लिखिए।
it considers the information collected and the facts of consumer. It considers the information collected and the facts of the consumer to come to a conclusion that on what factors customer decides on buying a product. Customers to come to a conclusion that on what factor customer decides on buying a product. So basically here this model is defined कि consumer जब तक problem को face नहीं करेगा, मतलब problem जब face करता है तो वो कैसे जाकर के product को खरीदता है. यहाँ in short यही है, बस याद रखना. यहाँ पर मैसेज के थ्रू हो रहा था, निकोशिया मॉडल के थ्रू मैसेज दे रहा था, जो कंपनी मैसेज दे रहा था, प्रमोशन कर रहा था, उससे इन्फ्लुएंस होकर के डिसीजन ले रहा था कंज्यूमर. यहाँ जब प्रॉब्लम फेस करेगा ना कंज्यूमर, तब जाकर के वो मार्केट में कैसे परचेज करेगा उसके बारे में ईकेबी मॉडल. ठीक है, जैसे मैंने बताया था दांत में दर्द, कपड़े धोने की प्रॉब्लम, तो दीज आर द प्रॉब्लम व्हिच इज फेस्ड बाय द कंज्यूमर which force them to choose the better toothpaste or to purchase the washing machine, right? So in short what does it mean कि यहाँ पर ईकेबी मॉडल ये कहता है कि कंज्यूमर जब फेस करता है प्रॉब्लम, तब वो कैसे जाकर के प्रोडक्ट को परचेज करेगा, वो है इसमें आपका. ठीक है, सो इसमें लिखिए, पहला इसमें कुछ 4 फंक्शन है. पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स. आइडेंटिफिकेशन यानी हमारा क्या प्रॉब्लम है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, समझेंगे. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. सर्चिंग फैक्ट्स. फैक्ट सर्च का मतलब इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, सारा इंफॉर्मेशन नेट के थ्रू, फ्रेंड्स, फैमिली सबको देखेंगे, उसके बाद फिर इंफॉर्मेशन बेसिकली फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे. उसके बाद करेंगे हम चॉइस, जो भी वहां पर जितने हमारे पास मिलेंगे, जितने फैक्ट्स में जो भी बेटर मिलेगा उसमें से हम कुछ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करेंगे. सो असेसमेंट ऑफ, पहला लिख लिया आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सेकेंड है सर्चिंग फैक्ट्स, थर्ड है असेसमेंट ऑफ पॉसिबल चॉइसेस, थर्ड असेस करेंगे पॉसिबल चॉइस को, एंड फाइनली सिलेक्शन, फाइनली प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे. हाँ, जो नॉर्मल बाइंग बिहेवियर है वही सेम है आपका ईकेबी, बस यहाँ 4 स्टेप है, वहां 5 है ना, यहाँ पर 4 स्टेप है. 4 स्टेप में पहला क्या है कि प्रॉब्लम को क्या आइडेंटिफिकेशन होगा, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. सेकेंड इज सर्चिंग द फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे. थर्ड क्या होगा, चॉइस या असेसमेंट ऑफ द पॉसिबल चॉइसेस, जितनी भी चीजें उसमें से हम चॉइस करेंगे, चूज करेंगे. ठीक है, देन आफ्टर दैट फाइनली सिलेक्शन, मतलब फोर्थ में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन होगा. सो दीज आर द मॉडल्स, ईकेबी मॉडल, निकोशिया मॉडल, ये दोनों मॉडल था, और एक था आपका सोशियोलॉजिकल मॉडल. सोशियोलॉजिकल मॉडल भी हम लोगों ने कर लिया ट्रेडिशनल में. ठीक है, कंटेम्पररी मॉडल में निकोशिया मॉडल है और ईकेबी मॉडल है. ठीक है, इन दोनों मॉडल को पढ़ लेना, किसी भी दिन पूछ लोगे किसी भी बच्चे से. ठीक है, याद रखिएगा सब, एवरीवन. ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास, एवरीवन क्लियर हो गया? ईकेबी मॉडल क्लियर हो गया सबको? ऑनलाइन क्लास, ईकेबी मॉडल, ओके. तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है, अगर अभी क्लास